Welcome in chemistry sessions. Very good morning to everybody. Let us in last lecture we have been discussed the part of this the reactions of amine. The first reaction this is reaction is the alkyl halide. तो यहाँ पे हम ए रिमेनिंग रिएक्शन की बात करने वाले हैं. दिस इज द रिएक्शंस विथ HNO2, a reaction with HNO2. That HNO2 is coming from, this is, we know that this mixture of NaNO2 plus HCl, this is what nitrous acid. This formation is a nitrous acid. It is prepared from sodium nitrite and hydrochloric acid. Here the next reaction, again a reaction with the same, this is nothing but a same reaction condition, that is nothing but HNO2 oxidizing agents. It is followed by water or cold condition, as we can say water or cold condition. Next reaction, a reaction with what, this is a acid halide. Reaction with acid halide. Next reaction, the reaction number fourth one, a reaction with sulfonamide. This is what alkyl sulfonyl chloride, as we can say this sulfonyl chloride. So that's why this is what alkyl sulfonyl chloride. Then next reaction we are going to add, this is the part of the reaction, this is what aromatic amines. So that is next reaction, aromatic amines, that is particularly it may be primary aromatic amines as well as secondary aromatic amine. So which types of the reaction is takes place? This is what it is the types of the substitution reaction as well as diazotization reactions. Again next reactions we are so this is the next reaction with what, reactions of amine, that is particularly aromatic amine is nothing but what this what electrophilic substitution reaction. We know this is the nitration, sulfonation, halogenation, Friedel-Crafts reaction, Friedel-Crafts alkylation, Friedel-Crafts acylation. So like to phenol, this is the halogenation reaction does not take place. Friedel-Crafts alkylation and acylation reaction also do not takes place with aniline, that is nothing but primary aromatic amine. Why? Because of, we know this is the formation of the complex like to the aniline molecules or like to the phenol molecule. जैसे कि phenol है, phenol के साथ हेलोजेनेशन रिएक्शन नहीं होता इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड. यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि लेविस एसिड जब हम लेते हैं, सो दैट इज रिएक्ट विद द हेलोजन एज वेल एज यू कैन टेक व्हाट, दिस इज व्हाट हेलोजन्स. You can see this is the halogens. I can add a halogen with a Lewis acid, AlCl3, FeCl3, ZnCl3. I can add FeBr3 as well as we can take this word alkyl chloride. अब हम जब alkyl chloride लेते हैं या acid halide लेते हैं, इसके साथ Lewis acid हम ट्रीट करते हैं, तो याद रखना है कि हेलोजनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्किलेशन, असाइलेशन, ये तीन रिएक्शन यहाँ पे नहीं होते हैं जबकि हम लेविस एसिड यहाँ पे यूज करते हैं. व्हाई? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट वहाँ पे फॉर्म नहीं होता है. सो स्टेप बाय स्टेप वी विल डिस्कस द पार्ट ऑफ द रिएक्शन. इन लास्ट लेक्चर वी हैव बीन स्टडी द पार्ट, दिस इज द ही रिएक्शन, दैट इज नथिंग बट हॉफमैन एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन. तो यहाँ पे हॉफमैन एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये था कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब अमाइन है, प्राइमरी अमाइन है, तो यहाँ पे अल्किल हैलाइड कितने मोल लेना पड़ेगा? 3 मोल्स अल्किल हैलाइड यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा. व्हाई? सो बिकॉज ऑफ वी वांट टू द फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन इंटरमीडिएट, हमको रिएक्शन इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट हमारा फॉर्मेशन होता है अल्कीन. नो डाउट इट इज नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन में. तो इंपॉर्टेंट ये है कि जब हमको रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारा क्या होना चाहिए? क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड होना चाहिए. दिस इज फॉर्मेशन ऑफ द क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट. रिएक्शन इंटरमीडिएट हॉफमैन एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन में यहाँ पे क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड, देन एडिशन ऑफ सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्शन कंडीशन हमको यहाँ पे यूज करना है.
इंपॉर्टेंट ये है कि प्राइमरी अमाइन हमारा यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है तो 3 मोल्स ऑफ अल्किल हैलाइड यूज किए जाते हैं ताकि क्वाटरनरी हैलाइड फॉर्मेशन हो. सो नेक्स्ट, इफ वी आर हैविंग द स्टार्टिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज अ सेकेंडरी अमाइन है तो यहाँ पे 2 मोल अल्किल हैलाइड लेना है. टर्शियरी अमाइन है तो यहाँ पे 1 मोल अल्किल हैलाइड लेना है ताकि हमारा क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट प्रिपेयर हो. देन क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड फॉर्म होने के बाद यहाँ पे हमको रिएक्शन कंडीशन सिल्वर हाइड्रोक्साइड लेना पड़ता है ताकि हाइड्रोक्साइड आयन वहाँ पे बेस बोल के काम करेगा और सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड यहाँ पे प्रेसिपिटेशन बोल के एज अ साइड प्रोडक्ट बाहर मिलेगा. So that is nothing but formation of what? Important thing is that formation of the product is or formation of the product molecule is what? Unsaturated hydrocarbon. तो यहाँ पे ये रिएक्शन को हमने डिस्कस किया था. So next reaction we are going to the part of this is nothing but what? Second types of the reaction with what? HNO2. That HNO2 it is coming from, or we can directly use HNO2 also. So but already we know that the basic of HNO2 is obtained from what? Nitrous acid. उसको HNO2 को नाइट्रस एसिड कहते हैं. इसका प्रिपरेशन हमको कभी एज अ रिएक्शन में मतलब रिएक्शन कंडीशन में करना है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम नाइट्राइट का यहाँ पे रिएक्शन करना है. सो व्हाट हैपन? फर्स्ट थिंग, इफ यू आर हैविंग द स्टार्टिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज व्हाट? NHR. So if you have this types of the reactant molecule, यहाँ पे हम जनरल रिएक्शन की बात करेंगे. So the general reaction is that if it is the secondary types of the amine, if you are having the secondary types of the amine, it is reacted or treated with HNO2 nitrous acid. So what happens? There is a formation of what? Here the product formation is nothing but what? NO. So there is a formation of the nitroso derivatives. यहाँ पे nitroso derivative formation होता है. So there is a formation of the nitroso derivatives whenever the secondary amine as well as the primary amine होगा तो भी हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्मेशन होता है. that is nothing but what? nitroso derivative. याद रखना है secondary amine. फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करेंगे अपन. साइक्लिक कंपाउंड लेते. दिस इज वन ऑफ द स्पेसिफिक रिएक्शन. इफ इट इज रिएक्टिव विद HNO2 नाइट्रस एसिड, कौन मिलेगा यहाँ पे प्रोडक्ट? नो डाउट हियर फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? नाइट्रोसो डेरिवेटिव. हियर फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? नाइट्रोसो डेरिवेटिव. चाहे साइक्लिक कंपाउंड हो या असाइक्लिक हो, याद रखना है रिएक्टिव हैंडल यहाँ पे कौन है? इफ वी आर हैविंग दिस टाइप्स ऑफ द अमाइन, एथिल मेथिल अमाइन, सो द रिएक्शन कंडीशन इज सेम. What happened? Here nitrogen atom and here what a NO group is there. Again nitroso derivatives is obtained. अब यहाँ पे टर्शियरी अमाइन कभी होता है तो हमारे पास सपोज टर्शियरी अमाइन है यहाँ पे, ये हमारे पास रिएक्टेंट है. ओके, सो दैट इज द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स. यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन हमको लेना है नाइट्रस एसिड. क्या ये रिएक्शन होगा? नहीं होगा. यहाँ पे नाइट्रोसो डेरिवेटिव फॉर्मेशन नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? बिकॉज ऑफ देयर इज देयर इज अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम. यहाँ पे हाइड्रोजन एटम एब्सेंट है, इसीलिए रिएक्शन नहीं होता है. प्राइमरी अमाइन की बात करेंगे. यस ऑफ कोर्स यहाँ पे रिएक्शन होगा बिकॉज ऑफ एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम मस्ट बी देयर. वेयर? नाइट्रोजन एटम. नाइट्रोजन पे है एक तो भी हाइड्रोजन एटम होना चाहिए. यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव फॉर्मेशन होगा नाइट्रोसो. अब यहाँ पे नाइट्रोसो की हम बात करने वाले, यहाँ पे नाइट्रोसो डेरिवेटिव होता है, लेकिन याद रखना है प्राइमरी अमाइन है तो यहाँ पे नाइट्रोसो डेरिवेटिव नहीं मिलता है. यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ दिस इज नथिंग बट इफ वी आर ट्रीटेड दिस टाइप्स ऑफ द कंपाउंड, दिस इज द अल्किल ग्रुप, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द N2Cl. हियर द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप्स ऑफ द स्पीशीज. दिस रिएक्शन इज अंडरगोज एट अ कोल्ड कंडीशन. याद रखना है प्राइमरी अमाइन है तो यहाँ पे रिएक्शन डाइजोटाइजेशन होता है. क्या होता है यहाँ पे? अरिल. सो कैन दिस इज द अल्किल. द नेम ऑफ दिस टाइप्स ऑफ द कंपाउंड इज व्हाट? अल्किल. अल्किल व्हाट? अल्किल
diazo chloride. These types of the product molecule is obtained. Afterward the reaction is carried out in presence of various reaction condition. अब आगे क्या करते हैं, जब प्राइमरी अमाइन हमारे पास है, स्टार्टिंग रिएक्टर कौन है, प्राइमरी अमाइन है. सपोज यहाँ पे हम प्राइमरी अमाइन लेते हैं अनिलीन. कौन सा कंपाउंड है, अनिलीन है. अब इस अनिलीन के साथ हमको रिएक्शन करना है, किसका, NaNO2 प्लस HCl. इट इज नथिंग बट व्हाट, इट इज नथिंग बट HNO2. ये लिखो नहीं तो ये लिखो, ये ले लो नहीं तो ये ले लो. अब सपोज हमारे पास राउंड बॉटम फ्लास्क है ना, क्या है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसमें हमको रिएक्शन करना है. सो इफ यू हैव टू ट्रीटेड दिस अनिलीन मॉलिक्यूल एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज व्हाट, डायजोटाइज मिक्सचर. इसको डायजोटाइज्ड मिक्सचर कहते हैं. जैसे कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है HNO3 प्लस H2SO4, वैसा ही ये मिक्सचर है. इस मिक्सचर को डायजोटाइज मिक्सचर कहते हैं. याद रखना है यहाँ पे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस रिएक्शन लेना है. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वाटर बाथ लेंगे. एज अ प्रैक्टिकली यहाँ पे एक वाटर बाथ लेंगे. वाटर बाथ में हमको क्या करना है, आइस ऐड करना है. आइस है ना, आइस, और कैन से दिस इज द कोल्ड वाटर. जैसे यहाँ पे आइस कोल्ड वाटर लेना है. हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क में एनिलीन है, राउंड बॉटम फ्लास्क में एनिलीन है, और यहाँ पे हमको ये डायजोटाइज मिक्सचर जो है, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एनिलीन से पहले हमको डायजोटाइज मिक्सचर यहाँ पे लेना है. डायजोटाइज मिक्सचर यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक द डायजोटाइज मिक्सचर इन अराउंड बॉटम फ्लास्क. देन हमको क्या करना है, यहाँ पे एक कोनिकल फ्लास्क और यू कैन टेक दिस सेपरेटिंग फनेल. यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेपरेटिंग फनेल लेना है, और उस सेपरेटिंग फनेल को क्या करना है, इस सेपरेटिंग फनेल में हमको अनिलीन लेना है. ये सेपरेटिंग फनेल जब कब तक ऐड नहीं करना है, जब तक इस रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर, जब तक इस रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस सेट नहीं होता है. 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब भी इसका सेट होगा, तभी हमको ड्रॉप वाइज एडिशन करना है. ड्रॉप वाइज एडिशन करना है किसका, अनिलीन का. ये टेम्परेचर सेट होने के बाद एडिशन करेंगे. सो अब यहां से हमारा रिएक्शन स्टार्ट होगा, ताकि यहां पे हम डिपेंड करेंगे अपॉन द कलर. सो दैट इज व्हाट, इट इज द डिपेंडिंग अपॉन द कलर एंड द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट इज हियर. यहां पे हमको मिलेगा सॉलिड कंपाउंड, यहां पे सॉलिड कंपाउंड बनता जाएगा. और वी नो दैट एवरी सॉलिड कंपाउंड्स आर साल्ट्स. क्या होता है, साल्ट्स होता है. सो दैट इज, इट इज प्रेजेंट. Of course, this is not only this is in liquid form, but it is also liquid form. But finally, it goes to the solid state and going to the formation of the N2Cl. This is a formation of what, ADC और BDC. इसको ADC कहो या BDC कहो. ADC मतलब अरिल डाइजोनियम. This is nothing but अरिल ग्रुप, अरिल डाइजोनियम क्लोराइड और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. अब ये बना हमारा कौन बना, ये बना हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट. यहां पे हमने इंटरमीडिएट फॉर्म किया. देखो ये जो साल्ट है ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहेगा. अब यहाँ पे हमको अलग अलग रिएक्शन कंडीशन यहाँ पे ऐड करना होगा. चलो क्या ऐड करते हैं, सपोज यहाँ पे हम ऐड करेंगे COCl कॉपर क्लोराइड, COBr कॉपर ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड और HbF4. तो यहाँ पे हमारा एरोमेटिक एनिलीन, दिस इज एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस का रिएक्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है. दैट इज व्हाट, द फर्स्ट रिएक्शन इज टेक्स प्लेस व्हाट, व्हेनेवर द कॉपर क्लोराइड इट इज हीटेड विद अरिल डाइजोनियम क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड Ki, HbF4 hydrofluoroboric acid, fluoroboric acid. This is the fluoroboric acid in presence of carbon disulfide as organic solvent. So what happen here, formation of यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा हमारा. So that is how chlorobenzene, that is how bromobenzene, that is how iodobenzene. यहाँ पे हमारे अरिल हैलाइड फॉर्मेशन हुआ, अरिल हैलाइड, हेलोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन.